Hello children. Today we are going to discuss the exercises of chapter number 8 of your English reader book. Okay? Chapter number 8 of your English reader book. That is A Swimmer Mihir Sen. Okay? This chapter I have taught you in your Google Meet class. Now I'm going to explain the exercises. So let's start. Now come to the page number. Wait for a minute. Open the page number 25. Yeah. Questions I have explained in the class, Google Meet class. I'm going to start from the question number B. Fine. Fill in the blanks by choosing the correct words from the help box. See children, what you have to do here, you have to fill these blanks with the help of the words which are given in the help box. Okay. Some words are given and you have to choose them. And you have to fill the blanks with the suitable options. Fine. Question number 1. One of India's most remarkable sportsmen is Mihir Sen, the blank of the seven seas. Then what will be here? Here it will be conqueror. One of India's most remarkable sportsmen is Mihir Sen, the conqueror of the seven seas. Okay, here it will be conqueror. Now come to the question number 2. Mihir Sen, the master swimming champion, did not know how to swim till he was 22 years of age. Fine. Here it is given in the box. You will write here. Now move to the question number C. In this question, what you have to do? You have to rearrange the sentences. Sentences are given, okay, but they are not arranged in a proper sequence. Okay, according to the story, according to the chapter which you have studied. So what you have to do here? You have to just arrange them. Okay, rearrange. You have to, and then just write on the numbering in the boxes which are given. The sentences which will come on the first, then you will write there 1 and then 2 and so on. Okay, see, okay, do it. Now come to the question number. Now come to the language structure. Homophones. What are homophones? Then see children, homophones are words which sound the same but are spelled differently. ठीक है, होमोफोन्स वैसे वर्ड्स होते हैं जिनके साउंड सेम निकलेंगे बट जो उनकी स्पेलिंग होती है, उनकी मीनिंग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अलग होंगे, आपके डिफरेंट होंगे. ठीक है, जैसे में देख लो आप, जैसे नो, NO नो मतलब नहीं, एंड द अदर वर्ड इज योर KNOW नो. आगे इसका मतलब क्या है? इट मीन्स जानना. देयर साउंड्स आर सिमिलर, सेम, but their spellings are different and their meanings are also different, है ना? So they are homophones. Fine. One more example is there, जैसे write, 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 write मतलब लिखना. And one more word is there, write, RIGST, write मतलब correct या सही. ठीक है, तो they are sounding the same but their spellings are different, their meanings are different, so they will be called as homophones. Got it? So see, in question number A, you have to fill the blanks. Okay, fill in the blanks with the correct words from the brackets. See, there are options are given which you have to choose, and then you have to fill the blanks with suitable options. In the first one, the blank of us are going blank the beach. Then the of us, तो यहाँ क्या हो सकता है? Here it will be two, TWO2. Then here it will be two, the two of us, मतलब कि हम दोनों, हम लोगों में से, हम दोनों में से, are going to the beach. Here the preposition is needed, so here it will be TO2, TO2. First में TWO2 and second में TO2. And in the third, here it will be two, TOO2. Would you like to come to? क्या तुम भी आना पसंद करोगे? टू मतलब भी, TOO2 मतलब भी. ठीक है, देखो इनके साउंड सेम है बट इनके स्पेलिंग्स क्या है, अलग अलग है, मीनिंग्स अलग है. फाइन. सो दिस आर होमोफोन्स. इन द सेम वे यू विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर B, स्पेलिंग्स. सी, क्वेश्चन नंबर B, राइट द फॉलोइंग वर्ब्स बाय एडिंग ING टू देम. व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू जस्ट add ING to the words which are given and then it will become the new words. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइव, ड्राइविंग. न्यू वर्ड्स मीन्स व्हाट, मतलब
if they are verbs, then they can become noun, है ना, मतलब meaning will be not changed. Okay, drive, driving, and what you have here, e will be removed, driving, it will be driving, driving. राइट का ई हट जाएगा, देन इट विल बी राइटिंग, एंड देन स्टॉप में स्टॉपिंग, STOPPING, it will be stopping. Okay, fine. Now move to the question number. Now move to the grammar glee, the most important part, continuous tenses. ठीक है, then there are three kinds of continuous tenses. Fine, there are three. First one is your present continuous tense, second one is your past continuous, and the third one is your future continuous. Okay, see in the first one, what is present continuous? At first we should know what is continuous. continuous जो है वो बना है कंटिन्यू वर्ड से, ठीक है, कंटिन्यू मीन्स लगातार, कंटिन्यू कोई काम हो रहा हो जो रुका ना हो, ठीक है, इन प्रेजेंट रुका ना हो, पास्ट में अगर हुआ हो तो वो रुका नहीं था, वो काम हो रहा था, फ्यूचर में वो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कोई एक्शन बोलने के समय हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट नाउ आई एम व्हाट, आई एम टीचिंग यू और आई एम स्पीकिंग, देन आई एम कंटिन्यूसली स्पीकिंग ना, और आई टेकिंग ब्रेक, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो लगातार मैं पढ़ा रही हूँ। देन दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रही हूँ इन हिंदी, रही हूँ मीन्स अभी कंटिन्यू है, तो आपका ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, और ये कंटिन्यू है तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फाइन। शी इज़ रनिंग फास्ट, वो तेज़ दौड़ रही है, मतलब वो दौड़ रही है, वो उसने फिनिश नहीं किया है। ओके, दे आर राइटिंग लेटर्स, वो अभी लेटर्स लिख रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें होता है कि कोई काम जो आपके पास्ट में हो रहे थे लगातार, है ना, वो प्रोग्रेस में थे, मतलब कि नॉन स्टॉप वो हो रहे थे, फिर बाद में वो स्टॉप हुए थे, बट जब हो रहे थे तब की बात की जा रही थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कल पढ़ा रही थी, नोट करो आप, यहाँ पर मैं रही थी बोल रही हूँ, रही है मैंने बोला था प्रेजेंट वाले में, पास्ट वाले में रही थी, तो मैं पढ़ा रही थी, तो मैं क्या बोलूँगी, आई वॉज टीचिंग, है ना, मैं पढ़ा रही थी। देखो मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर में क्या किया मैंने, पहले वाले में था आई एम टीचिंग, प्रेजेंट वाले में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बोला आई वॉज टीचिंग। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है ना वो आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज़ आर एम लगाओगे आप, पास्ट है तो वाज वर में से कोई एक लगाओगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपको लगाना होगा विल बी, शैल बी। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर ये चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ये आपको मैंने एक चैप्टर में पढ़ा दिया है, चैप्टर नंबर 5 and 6 आई थिंक इट इज़ इन योर ग्रामर बुक, जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाया आपको, बोथ इज़ आर एम एंड वाज वर, दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो आप वो वाले वीडियो देख लो, इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है, कहाँ कौन सा यूज़ होता है। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे आई वॉज ड्रिंकिंग अ हॉट कप ऑफ टी, जैसे कोई इंसान है जो अपने बारे में बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे ही ले लो आप, कल मैं, मतलब कि मैं किसी समय पी रही थी चाय, ठीक है, गर्म चाय पी रही थी, वो लगातार मैं पी रही वैसे थोड़ी है, मैं पी कर मैं फिर है ना वो घूमने चली गई, फिर आगे पीऊँगी, ऐसा नहीं। अगर गर्म चाय तो लोग कोशिश करते हैं कंटिन्यू पी ले उसे, है ना, तो वो कंटिन्यू काम हो रहे थे, तो ये हो गया आपका आई वॉज ड्रिंकिंग, ठीक है, हॉट कप ऑफ टी। फ्यूचर में क्या होता है, कोई काम आपने प्लानिंग कर लिया हो कि हाँ ये काम लगातार हो रहा होगा, तो वो आपका हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जैसे कि आपको कल कहीं जाना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, या फिर फॉर एग्जांपल आपको जैसे इस टाइम आप कहीं कल पढ़ाई करनी है आपको, तो आप क्या बोलोगे कि आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम, टुमारो आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम, कल इस समय मैं पढ़ रहा हूँगा या पढ़ रही होंगी, है ना, तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, रहा हूँगा, रहा होगी, या जो भी हो, ठीक है।
जैसे अ काउ विल बी ईटिंग फ्रेश ग्रास, जो गाय है वो क्या, जो फ्रेश घास है, ताज़ी घास है, वो खा रही होगी। ठीक है, शी विल बी कंटिन्यूइंग हर वर्क, काउ जो है वो अपना काम कंटिन्यू कर रही होगी। ठीक है, द गर्ल्स विल बी सिंगिंग स्वीटली, लड़कियां जो है वो गाना गा रही होंगी मीठी। ठीक है, सो दिज आर द काइंड्स ऑफ टेंसेस। स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब आईएनजी। इट मीन्स व्हाट, आपको वर्ब में आईएनजी ऐड करना होगा। टॉक है तो टॉकिंग, स्पीक स्पीकिंग, डांस डांसिंग, राइट राइटिंग, ये हो जाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे इज आर एम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे वॉज वर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे विल बी एंड शैल बी। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर ए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाट टू डू हियर, आपको यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होते हैं, इज आर एम। तो आपको यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब बचे खुचे जो होते हैं वो जो लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, सेंटेंस में बचे खचे मैंने ऐसे नॉर्मल सेंटेंस यूज़ किया है, अब इसे मत ले लेना ये। ठीक है, देखो आई, तो आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब्स एम लगता है, तो इट विल बी आई एम टेकिंग। ठीक है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आई एम टेकिंग। ठीक है, इन दिस वे यू विल डू। टू में देखो आप अनिकेत। ठीक है, अनिकेत, तो अनिकेत क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ लगेगा इज़, अनिकेत इज़ लाफिंग हो जाएगा। ओके, इस तरह से बना लोगे आप। बी में देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया है आपको पास्ट में चेंज करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आई एम टीचिंग, और पास्ट का मैंने बोल दिया था आई वॉज टीचिंग, तो मतलब इज आर एम को वाज वर में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो टीना इज़ राइटिंग अ लेटर, टीना के साथ इज़ लगा है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है ये, और टीना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ लगा है। अब इसको पास्ट में करना है तो हमें वॉज वर यूज़ करना होगा, है ना। तो अब वॉज वर में से कौन सा यूज़ करेंगे, इधर वॉज और वर। तो सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, टीना एक ही पर्सन है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज। तो हो जाएगा टीना वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, दिस वन यू विल डू इन योर नोटबुक, नॉट ऑन योर बुक। ओके, इन दिस यू विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। कम टू द सी क्वेश्चन। इसमें आपको करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। मैंने बताया स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस का, वहाँ होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल बी और शैल बी क्या होता है, देखो विल बी आप कहीं किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो विल। शैल जो होता है बस दो के साथ यूज़ होता है, आई एंड वी के साथ। आई और वी एक्सेप्शंस होते हैं, ये है ना, शैल भी लेते हैं, विल भी दोनों ले सकते हैं अपने साथ। बाकी जो सारे होते हैं ना प्रोनाउंस या नाउन जो भी, वो अपने साथ विल लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर विल सब में कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं, शैल का बहुत ही कम यूज़ होता है, रेयर। तो यहाँ क्या होगा वी, अब वी के साथ क्या लगेगा, ऑब्वियसली विल बी, तो विल बी और डूइंग होना चाहिए। ठीक है, डू नहीं होगा क्योंकि हम वर्ब आईएनजी करते हैं, हम ऐड यूज़ करते हैं। तो कौन से ऑप्शंस में है विल बी डूइंग, सेकंड वाले में, देन दैट विल बी योर आंसर, है ना, देन दिस वन विल बी योर आंसर। सो यू विल टू टेक हेयर एंड देन यू विल राइट हेयर, गॉट इट। सो सेकंड वाले में सो ही नहीं, तो यहाँ फिर उसके बाद विल भी आएगा, सब में विल भी आएगा, गॉट इट, सब में आपको विल भी लगाना है। यहाँ कुछ नहीं देखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, बस विल बी सब में आएगा। ओके, और उसके बाद वर्ब आईएनजी वाला, तो इसमें वर्ब आईएनजी वाला कौन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है ये वाला, तो आप यहाँ फिल कर लोगे, गॉट इट। सो इन द सेम वे यू विल डू rest of the questions. I hope you would have understood this topic, and if you are having any problem then you can ask. So thank you, have a good day, bye bye.